محمد تحسین بجنور یوپی سے سوال کرتے ہیں، کیا خون کی بوتل جیب میں رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ خون ناپاک ہے، اگر خون کی بوتل آپ نے جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر خون اتنا کم ہو، جیسے 1 درہم کے بقدر یا اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، اگر 1 درہم سے کم ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن پہلے سے معلوم ہو تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، سخت کراہت اس کے اندر ہے۔ اور اگر زیادہ خون ہے تو اس صورت میں بالکل نماز نہیں ہوگی، نماز کو پڑھنا چاہیے۔ محمد تحسین بجنور یوپی سے سوال کرتے ہیں، کیا کسی جنتی کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا؟ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو اچھے اعمال والے ہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو بد اعمال ہیں، برے اعمال والے ہیں، ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ یہ قرآن کے اندر علامت بتائی ہے، تو اچھے اعمال والے جو ہیں ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہاف پینٹ پہن کے نماز کے بعد، ہاف پینٹ پہن کے نماز کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ہاف پینٹ پہن کے نہانے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک تو غسل اگر آپ کریں سنت طریقے پر تو شروع میں خود ہی وضو ہے، اس کے مطابق آپ وضو کر لیں، اور جب آپ نے غسل کر لیا تو غسل آپ کا جب ہو گیا تو اس میں وضو بھی ہو گیا، اس لیے کہ وضو میں جو ارکان ہیں، ایک تو چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، پیر دھلنا، سر کا مسح، یہ سب غسل میں ہو جاتا ہے، تو اس لیے جس شخص کا غسل ہو گیا اس کا وضو ہو گیا، چاہے وہ شروع میں وضو بنائے، سنت کے مطابق غسل کرے یا نہ کرے، لیکن دونوں صورت میں وضو ہو جاتا ہے۔ اب اگر غسل کرنے کے بعد کوئی حدث لاحق نہ ہوا ہو، ریا خارج نہ ہوئی ہو یا کچھ قطرات نہ نکلے ہوں، تو اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو پھر وضو نہیں کرنا چاہیے، ایسی صورت میں وضو ہو جاتا ہے، چاہے ہاف پینٹ پہن کر کے آپ غسل کریں یا برہنہ غسل کریں یا لنگی پہن کر کے کریں، باہر صورت جب غسل ہو جائے گا تو وضو بھی ہو جائے گا۔ غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور کہتے ہیں یہ حدیث میں ہے، اس کی وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ سید عاطف اسلام اناؤ یوپی انڈیا۔ یہ جو لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، سور المؤمن شفاء، یہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے، اسے گڑھا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، جھوٹی بات کو منسوب کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حدیث ہے اور میں نے نہیں کہا ہے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حدیث جب آپ کے پاس واٹس ایپ پر آئے، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ الٹی پلٹی باتوں کو جو ہے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، بالکل اس سے اجتناب کریں، تحقیق کر لیا کریں، یہ حدیث نہیں ہے، کہ لوگوں نے اس کو حدیث کہہ دیا ہے، باقاعدہ علماء نے اس کی صراحت فرمائی ہے، یہ موضوع حدیث ہے، اس کو لوگوں نے گڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں۔ ہاں، ساتھ مل جل کر کے کھانے کی جو برکت ہے اس کے الگ سے حدیث کے اندر اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر مل کر کے انسان لوگ کھائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، لیکن کہ مومن کا جھوٹا جو ہے یہ شفا ہے، یہ جو حدیث ہے اس کو حدیث سمجھ کر کے بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تراویحوں میں سورہ پر بسم اللہ آواز سے پڑھنی چاہیے یا نہیں، اور اگر پہلے پڑھ لیں تو کیا فائدہ ہے، نہ پڑھے تو کیا نقصان ہے؟ نا یہ کون ہے؟ ارباز جوگی پور ہریانہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت احناف کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بھی قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، اس لیے تراویح جو پڑھاتے ہیں وہ تو بسم اللہ پڑھ ہی لیتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن تراویح میں قرآن کریم کا جیسے
सुनाना या पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसे ही सुनना भी सुन्नत मुअक्कदा है। तो एक मरतबा इमाम साहब को चाहिए कि तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बआवाज़ बुलंद पढ़ें, ताकि ये जो कुरान करीम की आयत है ये भी मुक्तदी सुन ले और उनका भी कुरान करीम के सुनने की जो सुन्नत मुअक्कदा है वो पूरी की पूरी अदा हो जाए। तो एक मरतबा ऐसे, क्योंकि एक मुस्तकिल आयत है, एक मरतबा पढ़ लेने से बआवाज़ बुलंद ये सुन्नत अदा हो जाएगी। और वैसे आम नमाज़ों के अंदर आहिस्ता पढ़ना है, बआवाज़ बुलंद नहीं पढ़ना है। मुझे फातिहा बता दीजिए, 11वीं को भी सुल्तान लूटी। सुल्तान साहब फातिहा के माना आते हैं इसाले सवाब के। फातिहा का मतलब होता है जो सवाब हमें मिला है वो सवाब हम इसाल करते हैं, पहुँचाते हैं। जैसे हम कोई गरीब को खाना खिलाते हैं, उसका जो सवाब मिलता है हम उसे पहुँचा देते हैं, या हमने किसी को सदका किया, उसका जो सवाब मिला हमने उसका सवाब पहुँचा दिया। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें आपको इसाले सवाब करनी हो आप उनका इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन खाने को सामने रख करके जो तरीक़ा है ये तरीक़ा बिल्कुल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। ख़ुद जो बरेलवी हजरात हैं उनके जो सबसे बड़े इमाम हैं हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब, उन्होंने ख़ुद अपने फतावा के अंदर, फतावा रिज़विया जिल्द 4 के अंदर लिखा है कि खाने को सामने रख करके जो ये लोग फातिहा करते हैं ये बेकार वाला काम करते हैं। खुद आपके इमाम साहब अहमद रज़ा साहब ने ये बातें लिखी हैं। तो जितने भी उलमा अहले हक़ हैं वो इसको गलत कहते हैं। तो फातिहा का मतलब होता है इसाले सवाब, आप कुरान करीम पढ़ करके बख्शें, खाना खिला करके बख्शें। खुद आप सोचें जब खाना सामने रखा जाता है तो खाने का जब सवाब ही नहीं मिला तो हम किस चीज़ को पहुँचा रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं और उसका सवाब पहुँचा रहे हैं। पहले कोई सूरह फातिहा पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, फिर उसे बख्शता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, खाना सामने रखा हुआ है और इसाले सवाब कर दिया। अगर कुछ भी अल्लाह ने अक़ल दी है तो ये सोचें कि ये खाना सामने रखा है तो इसका इसाले सवाब कैसे होगा। और खुद इमाम अहमद रज़ा साहब ने भी लिखा है, लेकिन वो लोग अपने इमाम साहब की बात को भी नहीं मानते, हमारी बात क्या मानेंगे। तो इसलिए मैंने बता दिया। और ये जो आपने पूछा है 11वीं और 11 है, 40वां है, इस्लाम में ये सब कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं है। जब आप इसाले सवाब करना चाहें आप कर सकते हैं, न कि 11वीं को और 15वीं को और 13वीं को। ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर नहीं है। जब भी आप इसाले सवाब करना चाहें, जब भी कुरान पढ़कर बख्शना चाहें, जब भी आप फ़कीर को खाना खिला दें और उसका सवाब पहुँचा दें, जिस वक्त भी आप चाहें कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी तारीफ़ मुकर्रर करना ये बिदअत है। इससे अस्सलामु अलैकुम, मेरी अहलिया को नज़र है और आपसे दरख्वास्त है कि हमारी अहलिया के बारे में ज़रा गौर से देखें, क्योंकि तकरीबन 28 साल हो चुके हैं मगर आज तक कोई इलाज न मिल सका। अगर मिला भी तो थोड़ा बहुत, और अब आकर तो हम सभी परेशानी में। हकीम अहमद गाज़ियाबाद। अगर नज़र है आपके अहलिया को तो सूरह कलम की आखिरी 2 आयत हैं, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये 7 मरतबा पढ़ करके दम करें, इंशाअल्लाह नज़र उतर जाएगी। पानी पर भी दम करके पिलाएं। इसी तरीक़े से एक दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपके जो नवासे हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को जब नज़र लग जाती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ करके दम किया करते। वो दुआ भी आप सुन लें। अल्लाहुम्मा दस्सुल्तानिल अज़ीम दल मन्निल क़दीम दल वजहिल करीम वलियल कलिमातित ताम्मात वद्दअवातिल मुस्तजाबात आफिल हसन वल हुसैन मिन अनफुसिल जिन्नि व आफिल इंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, अल हसन वल हुसैन की जगह पर अपने अहलिया का नाम लें या जिसको नज़र लगी है आप उसका नाम ले लें और उसको पढ़ करके दम करें, इंशाअल्लाह नज़र। सूरह कलम के आखिरी 2 आयत 29वें पारे की दूसरी सूरत। पहली सूरत सूरह मुल्क है, दूसरी सूरत सूरह कलम। नून वल कलम वमा यस्तुरून, इसकी आखिरी 2 आयत। मेरा 22वां पारा तरावी में सुनने से रह गया है, एक दिन की तरावी नागा हो गई है, ऐसे में क्या करें, क्या हुक्म है। मुजाहिद साहब आगरा से सुना। आप किसी और दिन उसको सुन सकते हैं,
कोई हाफिज़ साहब, इमाम साहब अगर तैयार हों तो आप उनसे जो भी पारा छूटा हुआ है उनको आप अलग से, जैसे तरावी 15 दिन में मुकम्मल, कुरान मुकम्मल हो गया, 20 दिन में हो गया, उसके बाद जो सूरह तरावी चलती है तो आप किसी इमाम साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि आप मुझे मेरे घर ही के ऊपर आकर के एक दिन तरावी पढ़ा दें और उसके अंदर वो 22वां पारा जो छूट गया है पढ़ा दें। इस तरह आपका पारा मुकम्मल हो जाए। नमाज के अंदर वुज़ू टूट जाए तो नमाज तोड़ देना चाहिए या नहीं? उवैस खान, महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल, जब नमाज के अंदर वुज़ू टूट गया है तो बगैर वुज़ू के तो नमाज नहीं होती, तो फ़ौरन आप नमाज से निकल जाएं और आप जाएं और वुज़ू बनाएं। वुज़ू बना करके आप वापस आएँ। वापस आने के बाद आप चाहें तो वहीं से आप आगे कंटिन्यू कर लें और चाहें तो शुरू से पढ़ें। दोनों ऑप्शन आपके पास है। जैसे कोई अगर पहली रकात पढ़ रहा था और दूसरी रकात के लिए जो ही खड़ा हुआ क़याम में, और क़याम में उसका वुज़ू टूट गया, रिया खारिज हो गई, किसी जगह खतरा निकल गया, एहसास हो जाता है, तो वहीं से नमाज के बाहर चले जाइए और जा कर के हम इसको दुरुस्त कीजिए। करने के बाद वापस आइए, वुज़ू बनाने के बाद वापस आ गए। अब इसके बाद वहीं से कंटिन्यू करना है। जैसे क़याम के अंदर थे तो क़याम में अल्हम्दुलिल्लाह अगर पढ़ रहे थे तो जहाँ तक पहुँचे तो उसके आगे से कंटिन्यू कर लें, और अगर चाहें तो शुरू से नमाज़ पढ़ें। दोनों आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन वैसी नापाकी की हालत में नमाज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वहाँ फ़ौरन नमाज से आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हिफ्ज़ कुरान पढ़ता हूँ। मेरा 20 पारा मुकम्मल हो गया है। रमज़ान भी चल रहा है और इस रमज़ान में रोज़ा भी रखता हूँ, 5 वक्त की नमाज में भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारे हाथों से ज़िना हो जाता है, पता नहीं क्यों। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन तब भी नहीं छोड़ पाता। मौलाना साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ बताइए कि मुझे समझ आए। मोहम्मद साहिल साहब कुर्सी को देखें, ये जैसे ज़िना होता है ऐसे ये हाथ का ज़िना है। हदीस में इसे हाथ का ज़िना कहा गया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, ना कि वो बियदिही मलऊन, जो अपने हाथ से जो वती करता है, जो लोग मुश्त ज़नी करते हैं अपने हाथ से, वो मलऊन, अल्लाह के नबी को उनके ऊपर लानत। और दुनिया के अंदर भी तबाही और बर्बादी कि जो इंसान ऐसा करता है उसकी सेहत बिल्कुल तबाह हो जाती है और शादी के लायक वो नहीं रहता है, और फिर शादी के बाद शादी हो जाती है, आखिर किसी न किसी वक्त तो शादी होगी, तो फिर इस लायक बंदा नहीं रहता है कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा कर सके, और फिर वो वक्त आता है जब बीवी लात मार करके उसको कमरे से बाहर निकाल देती है। समझ आ रही है? इसलिए अभी से तौबा कर लें, वरना पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह बर्बाद हो जाएगी। एक बीवी लात मार करके निकालेगी और दूसरी बात हमेशा के लिए औलाद से महरूम हो जाएगी। जब वो स्पर्म के अंदर पावर ही नहीं रहेगा तो औलाद कैसे होगी? और फिर ज़िंदगी भर आप फलां हकीम साहब के यहाँ जाएंगे और फलां डॉक्टर के पास जाएंगे और वो लोग आपको 10,000 इतना दे दीजिए उतना, और आप पूरी ज़िंदगी परेशान करेंगे, लेकिन वो ताकत आपको दोबारा मिलेगी। तो आखिरत की भी तबाही और बर्बादी है, दुनिया की भी तबाही और बर्बादी। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप निकाह कर सकते हो तो आप फ़ौरन निकाह कर लें, इस लानत से आप बच जाओगे। निकाह बहुत सी गुनाहों से इंसान को बचा देगा। अल्लाह के नबी का इरशाद है, निकाह अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़र्ज। निकाह जो है वो इंसान की निगाहों को नीची कर देता है और उसके शर्मगाह की हिफाजत करता है। तो इसलिए निकाह करने के बाद ईमान की भी तकमील हो जाती है। निकाह निस्फ़ुल ईमान, निकाह आधा ईमान। इसलिए अभी जो लोग निकाह नहीं किए उनका ईमान अभी आधा है, तो निकाह करें। निकाह करने से आपके शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसलिए कि इंसान क्यों करता है मुश्किल, जब उसके अंदर शहावत भड़कती है और वो कोई महल नहीं पाता है तो वो जा करके हाथ से मुश्तज़नी करके और वो अपनी मनी को ज़ाया करता है। आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप निकाह कीजिए और उसको महल के अंदर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि आप उसके ज़रिए जो है कसरत, औलाद की कसरत हो, ताकि मैं कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के ऊपर फ़ख्र करूँ, उम्मत की ज़्यादती के ऊपर। और
اولاد کو بھی اچھی تعلیم دیں، اچھا سبق سکھائیں، جیسا کہ ایک سوال آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس سے آپ توبہ کریں، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے روزے کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں. روزے سے ہی جو شہوت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. تو اگر نکاح ابھی نہیں ہو پا رہا ہے کسی وجہ سے تو آپ روزے کو رکھیں، اور جب بھی اس طرح کی کوئی کیفیت ہو فوراً وضو بنا کر کے مسجد آ جایا کریں، اور اللہ رب العزت سے 2 رکعت نماز پڑھ کر خود دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے. تو انشاءاللہ اس طرح